Hello, good morning, dear students. Welcome all of you in this new video. We will continue with the same unit. Today's our topic is elastic collision in one dimension. In previous video, I told you that what is collision, what are its types. Collision, मैं पहले रिवाइज करना चाहूंगा थोड़ा सा. The term collision, it refers to the interactions between the two bodies due to which the direction and the magnitude of the velocity of the colliding bodies changes. Collision are of three types: elastic collision, inelastic collision, and perfectly inelastic collision. Inelastic collision, its momentum and kinetic energy remains conserved. In inelastic collision, only a linear momentum remain conserved, but the kinetic energy changes. And in third case, in perfectly inelastic collision, after the collision, the body will stick together and moves as a one body. You can say with a common velocity. Clear? Now we will try to explain elastic one-dimensional collision. For that, we have considered two body A and body B. Body A and body B, ठीक है, before having mass m1 and m2, before collision, ठीक है, before collision, their initial velocity is u1 and the body B having the velocity u2, ठीक है. In this figure, they will collide, they interacted with each other and will change their velocity, and after collision, they acquire a velocity v1 and v2 respectively, and the mass will remain same. Here, this is a head-on collision. This is the case of the head-on collision. Clear? Collision is elastic, so according to its definitions, its momentum and kinetic energy will remain conserved. ठीक है? So first of all, we will apply a law of conservation of its momentum according to law of conservation of its linear momentum. That is, momentum before collision is equal to the momentum after collision. ठीक है, यहाँ पे टू बॉडीज लिए हैं तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड मोमेंटम ऑफ बॉडी बी. क्लियर? तो मोमेंटम कितना हुआ इसका बिफोर कोलिजन? m1 u1 प्लस m2 u2, इट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. क्लियर है? This is according to the law of conservation of linear momentum. ठीक है, rearrange these equations. m1 u1 minus v1 is equal to m2 v2 minus u2. क्या किया मैंने यहाँ पे? ये जो वन बॉडी है इसका एक साइड को ले आए और जो सेकंड बॉडी है उसका मोमेंटम एक साइड को लाए. ठीक है, तो जो वन तो बॉडी ए का था उसको m1 कॉमन लिया, m2 दूसरे का क्या है m2 कॉमन आ जाएगा. सो वी गेट, ठीक है, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2. इसको इधर आ गया, ये दूसरा दूसरी साइड चला गया. क्लियर है? अब इसके बाद नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सेम बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द आफ्टर कोलिजन. सो दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये बॉडी ए की वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, एंड हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये किसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई? बॉडी बी की बिफोर कोलिजन, इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ? 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी आफ्टर कोलिजन. क्लियर? हाफ 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 दोनों में है, कॉमन है, तो इट विल कैंसल आउट. ठीक है, और फिर से यहां पे भी क्या करेंगे, मैं दो स्टेप एक साथ कर रहा हूं, हाफ 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 कैंसल, फिर वन को इधर, वन की टर्म को इधर, सेकंड को दूसरी साइड, फिर से m1 क्या है कॉमन, सो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू m2, ठीक है, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर. क्लियर है? तो हमारे पास इक्वेशन ये आई और ये इक्वेशन ये आई. हमने क्या करना, वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन 2, वी विल डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. ठीक है, क्या करेंगे हम, मैं यहीं पे लिख देता हूं, हमने इक्वेशन 2 को, इसी के इक्वेशन 2 है ये, इसको 1 से डिवाइड करना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और
राइट साइड को राइट साइड से, आपने अलग से लिखना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसको। क्लियर है? हो गया। m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक टर्म्स है, ऑपरेशन है, क्या कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या बन गया, a1 माइनस v1 इंटू ये प्लस, क्लियर, नीचे आ गया u1 माइनस v1, इट इज इक्वल टू v2 माइनस u2 प्लस v2 प्लस u2 अपॉन v2 माइनस u2। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, वी गेट u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। हाँ, क्लियर है? ठीक है, आप थोड़ा सा और ये रेंज करेंगे, सो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सो बोथ आर इक्वल। ठीक है, व्हेन वी टेक दैट्स, ठीक है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, हम जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो लेते हैं, इट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। क्या होता है ये? कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे मैं इसके क्वेश्चंस बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके बारे में, जो कंपटीशन में आती हैं चीज़ें, उसके बारे में। फिलहाल आप यहाँ पे करें, ये क्लियर है, यहाँ पे निकल गया, अब ये निकल गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने मानो v2 की वैल्यू निकाल दी। v2 इट इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। कहाँ पुट कर दिया हमने? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट हुए क्या बन गया, m1 u1 माइनस v1 इट इज इक्वल टू m2। ठीक है, u1 हो गया और किसकी वैल्यू पुट करें, v2 की। तो कितना आ गया है, v2 की वैल्यू पुट करें, v2 की जगह लिखे हम u1 माइनस u2 प्लस v1 और फिर साथ में क्या यहाँ पे माइनस u2, क्या यहाँ पे माइनस u2 हो गया। अब आप थोड़ा सा ऐसे और करें, सॉल्व करें ब्रैकेट के अंदर की चीजों को, सो इट बिकम्स u1 माइनस 2u2 प्लस v1 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप ब्रैकेट्स खोल सकते हैं पहले। ठीक है, क्या करना है, आपने ब्रैकेट खोली, m1 कितना था, m1 u1 माइनस m1 v1 इट इज इक्वल टू m2 u1 माइनस 2 m2 u2 प्लस m2 v1। क्लियर? अब आप v2 की टर्म्स एक साइड को, बाकी दूसरी, v1 को एक साइड को, बाकी दूसरी साइड को। तो v1 की टर्म क्या है, एक ये है, दूसरी ये है। ठीक है, आप इसे इधर ले जाए तो कितना बन गया है, m1 v1 प्लस m2 v1 इज इक्वल टू, मतलब आप इसे इधर ले गए, इन सबको इधर ले आओ, कितना बन गया, m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लीजिए। ठीक है, कॉमन क्या आएगा, v1 कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 इट इज इक्वल टू 2 m2 u2 और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा u1 प्लस u1, फिर अंदर क्या रह गया, m1 माइनस m2। सिंपल मैथ है। ठीक है, क्लियर हो गया, m1। ठीक है, अब क्या निकलेगा, v1 इज इक्वल टू 2 m2 u2 प्लस u1 m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। क्लियर हो गया, दिस इज अ वेलोसिटी v1 आफ्टर कोलिजन। क्लियर? सिमिलरली आप क्या करें, आप v2 निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना, जैसे मैंने आपको पहले हमने v2 की वैल्यू लेके इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया था, अब आपने उसी इक्वेशन से v1 निकाल के v1 की वैल्यू निकालनी, ये वाली नहीं, हमने इस टॉपिक में फिर से बताता हूँ, इस इक्वेशन से v1 की वैल्यू निकालनी और सेकंड इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी। ठीक है, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसके लिए किया था। फिर हमारे पास क्या आता है, वी गेट 2 m1 u1
प्लस U2 M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। आपको याद रखने के लिए शॉर्टकट बता दूं, आपने सिंपली यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज होगा, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, बस सिंपल सा सिमिलरली करके आप लिख लीजिए तो ये हो गया। ठीक है, करने का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इसके स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, केसेस में क्या है, स्पेशल केसेस में है, स्पेशल केसेस में क्या है कि अगर आपको ये बोला कि टू बॉडीज हैविंग द इक्वल मासेस, ठीक है, टू बॉडी हैविंग द इक्वल मासेस, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या बनेगी, आप क्या करिए m1 इनको सेम लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा v1 इज इक्वल टू u2 और v2 इज इक्वल टू u1। क्यों आया, अब यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, m माइनस m 0, खत्म। यहाँ क्या होगा 2m u2 अपॉन m प्लस m क्या होगा 2m से 2m कैंसिल, सो इट बिकम्स u2। वैसे यहाँ पे तो हमारे पास v1 और v2, तो आप यहाँ देखोगे कि ये जो पहले वाले की वेलोसिटी है दूसरे की होगी, दूसरे की पहली, तो मतलब अगर दो मासेस हैं, इक्वल मासेस हैं, अगर वन डायमेंशनल मोशन उसमें होता है, वन डायमेंशनल कोलिजन उसमें होता है, तो उनकी वेलोसिटी, देयर वेलोसिटी विल इंटरचेंज देयर, सो देयर वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज। क्लियर है, मतलब मास अगर उनका सेम है, मास सेम है, मास सेम होने के बाद क्या होगा कि उनकी वेलोसिटी अपने आप क्या होती है, इंटरचेंज होती है। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में व्हेन टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, टारगेट बॉडी एट रेस्ट मतलब U2 का क्या है 0। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये जो इक्वेशन में V1 और V2 की ली थी यहाँ पे पुट कर दिए, U2 क्या हो गया 0, यहाँ U2 0 पुट किया तो क्या होगा, ये टर्म पूरी 0 होगी, तो यहाँ पे क्या आ गया U1, ये आ गया आपके पास V1 इट इज इक्वल टू U1 M1 माइनस M2 अपॉन क्या बन गया M1 प्लस M2, और V2 कितना हो गया आपके पास, ये चीज टर्म 0 हो गई तो कितना बन गया 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। क्या किया हमने, इन दोनों को यहाँ पे पुट किया। क्लियर है, और ठीक है, किसको क्या पुट, U2 0 पुट किया हमने इक्वेशन नंबर V और V2 में, और फिर उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाती है। ठीक है, इसके बाद इसके केसेस आते हैं, डिफरेंट केसेस आते हैं कि ये आप बताइए कि इस केस में कि टारगेट बॉडी